We went to CLC, we succeeded, and because of that reduction in premium, almost 47%, it has become a reality. So an updation also, cases are pending, many cases are being fought. We had our experience on 100% DA, highest court. They recalled the case of Chennai, Club Road to Calcutta. Everybody was hopeful. Large amount was spent, and ultimately we lost. So judiciary is the last resort. AIBRF's philosophy is very clear. When the masses are there, we believe in our strength. We believe in our solidarity. And all of us, we have assembled here. The strength itself shows the commitment. Because all of us know the importance of trade union. We developed our careers in the bank because of trade union. And naturally, even at this age, we are coming in this big Azad Maidan. And in a city like Mumbai, assembling this big crowd is not so easy. Even our own children, they laugh us at many times. अरे आप भी जाके वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे? मेरी पोती है 10 साल की, कल जब मैं निकल रहा था बोलेगे अबा कल क्या बोलोगे? Will become a reality. Whatever struggles may come, IBA will have to talk to us. And what we can say for UFBU or other organization, with you, without you, in spite of you, AIBRF will continue its march, and we will going to win. We will have updation. We will have direct dialogue. AIBRF Jindabad. UFBRO Jindabad. Retirees Unity Jindabad. Retirees Unity Jindabad. Thank you all. नहीं देना अरे बोलो, सब हाथ उठा के बोलो, पेंशन अपडेशन देना होगा, पेंशन अपडेशन देना होगा, इंश्योरेंस पर प्रीमियम कम करना होगा, इंश्योरेंस से जीएसटी हटाना होगा, और डायरेक्ट डायलॉग करना होगा। आपकी फोटो खींच रही है, मेरी नहीं खींच रही है, जरा हाथ उठा करके डायरेक्ट डायलॉग करना होगा, डायरेक्ट डायलॉग करना होगा, डायरेक्ट डायलॉग करना होगा। See tomorrow what will happen if a case is lost in Supreme Court, and mostly it may happen because it's a weak case. The same leaders of UFBU, the same IBA officials, the same DFS officials, what they will say, you have gone and knocked the door of the highest judiciary. They have declined, so why you are coming to us? And always there is a blame game. Retirees are the litigants. We always tell them, as AIBRF, our philosophy is very clear. When the masses issues are there, we will not go for legal recourse. We will fight, we will pursue, and all of you know, even without direct dialogue, in last 2 years, how many achievements have come? Right from family pension improvement, ex gratia to pre-86, ex gratia to widows of pre-86, then ex gratia to existing pensioners has also come, resign is option has also come, many things are in the offing also, but over and above, this year in particular, it was only All India Bank Retirees Federation. We took a conscious decision, we filed an application in CLC. When the application was filed, even amongst us and naturally others, they say you don't have any locus standi. And finally we succeed. What was our stand? What was our demand? We are the stakeholders. We are paying premium from our own pocket. You should talk to us. At least you listen to us. And you implement your own agreement. Objection तो हमारा बेसिक राइट है. It is mother of all demands. In AIBRF we call it mother of all demands. तो वो तो सबसे दिल के करीब है. तो
AIBRF, AIBRF, UFBRO, UFBRO, बैंक रिटायरी यूनिटी, पेंशन अपडेशन लेके रहेंगे, पेंशन अपडेशन, पेंशन अपडेशन। तो बम्बई में धरना होना एक बहुत ही अलग बात है। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बम्बई का क्या अहमियत है आप सब जानते हैं। ये हमारा अयोध्या है, बैंकिंग का अयोध्या है, ये बैंकिंग का बद्रीनाथ है, ये बैंकिंग का वेटिकन सिटी है, ये बैंकिंग का मक्का मदीना है। तो आज इतनी बड़ी आपने जो संख्या में ये आए हैं और अभी भी आ रहे हैं हमारे बहुत से साथीगण, ये हमारे रिटायरी मूवमेंट को और हमारी मांग को एक बहुत मजबूती देने वाला, इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन। आपकी आवाज जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आईबी ऑफिस में पहुंच रही है और ये आवाज हमको पूरी ताकत से पहुंचाना है कि आप रिटायरी को हल्के में नहीं ले सकते। ये जो इतना देरी हो रही है अपडेशन में, ये एक तरह का बहुत बड़ा अन्याय है और इस अन्याय को जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। आईबीए को, गवर्नमेंट को और इवन यूनियंस को इसको लेना है। लास्ट सेटलमेंट हमको बहुत उम्मीद थी कि अपडेशन पे हो जाएगा, परंतु वहां भी हमको निराशा लगी और ये मांग पिछले 25 साल से पेंडिंग है। यदि सरकार, इंडियन बैंक एसोसिएशन यदि उसको सही तरीके से लेता, जब छठे से वेतन समझौते में पेंशन स्कीम आई, उसके बाद हर सेटलमेंट में यदि थोड़ा थोड़ा करते रहते तो ये मांग इतनी गंभीर नहीं बनती। तब जो है 100-200 करोड़ से काम हो सकता था, पर हर सेटलमेंट में जो नए रिटायर हुए उनकी पेंशन बढ़ा दी गई, पुराने को छोड़ दिया गया। और जो एक सेटलमेंट में नए थे वो भी पुराने हो गए। छठे वाले 7वें में पूरा हो गए, 7वें वाले 8वें में पुराने हो गए और अभी 12वें से वेतन समझौते में 11वें वाले भी पुराने हो गए। तो जब उस सेटलमेंट में मिलता तो बड़े खुश होते हैं, उनके लिए सब दिया जाता है, उसमें से थोड़ा सा भी हिस्सा यदि गंभीरता पूर्वक होते तो आज ये समस्याएं इतनी गंभीर नहीं होती। सॉरी, जो पेंशन हो रही है, आखिर में मसला क्या है, सरकार क्यों नहीं चाहती? मेरा नाम श्री जैन है, बच्चन जैन, जो हमारी अखिल भारतीय संस्था ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन, जिसके 3 लाख बैंक कर्मचारी मेंबर है, उसका मैं महासचिव हूँ। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो आज लंबित है, पेंडिंग है, वो है पेंशन अपडेशन। और हम पिछले 7 साल से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और ये अपडेशन का मामला ऐसा है कि 1995 में पेंशन स्कीम लागू हुई बैंकिंग इंडस्ट्री में, 1986 से बैक डेट से। उसमें उसके बाद 7 वेतन समझौते हुए, 5-5 साल के वेतन समझौते होते हैं। तो जो नए लोग होते हैं उनकी पेंशन बढ़ के मिलती है, नई बेसिक पे मिलती है, जबकि जो पुराने लोग हैं जो 86 के बाद रिटायर हुए, उनकी पेंशन बहुत कम है। उस जमाने में बेसिक पेंशन बहुत कम होती थी। जो एक समिति के क्लर्क है, उसकी बेसिक पेंशन उस टाइम 800 या 900 रुपये हुई। आज जो नया क्लर्क उसी कैटेगरी का रिटायर हुआ है, उसको 25-26 हज़ार। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। महंगाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेक्नोलॉजी सबके लिए एक है। सबको बाजार में कोई सस्ता नहीं मिलता पूरा। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है, जीवन यापन से वो अफेक्ट कर रही है। सर, देश का जो थोड़ा आगे पीछे होगा, उसमें से 4 लाख रुपया उसमें से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। पेंशन फंड काफी बड़ा है, सब बैंकों का मिलाकर 3.5 लाख करोड़ पेंशन फंड है। और अभी आप देखिए इसका पिछले 15 साल का जितनी ब्याज बैंक मिला के उससे कम पेंशन हमारे को जो है 2000 करोड़ की पेंशन सबकी मिला के, नए की पुराने की
और issues are already told them. 15,000 करोड़ है, 3 लाख। I am not getting to that. तो पैसा तो कोई समस्या नहीं है, सरकार की I am नीयत only चाहिए, बैंक के placing मैनेजमेंट की before नीयत you चाहिए। a पुराने very लोगों को very छोड़ देती peculiar है, situation इतने which काम we इतना should बड़ा है understand. कि With whom we are working, फाइनेंस with मिनिस्टर who are the people who are running the bank, and what is happening in the bank मिनिस्टर से हम industry. 6 बार My मिल चुके friend from हैं, AITA and 6 बार AITA मिल चुके हैं, are also हर बार वो there, आश्वासन and देते they will हैं, definitely मैडम देती understand the है कि situation. हम आपकी पेंशन Now अपडेट के you बारे में see, देखेंगे। एक जो है the 10 government नवंबर is supposed to 2021 be को एजीएम covering- इंडियन बैंक एसोसिएशन की यहीं पे They are बॉम्बे supposed to में, be उसमें one दिया कि भाई employer. इनका पेंशन अपडेशन शुड बी डन एंड They are नॉट ओनली supposed शुड बी to डन, keep up their अगर work. आप वन रैंक वन Am I पेंशन correct? जैसा डिफेंस में लगता है They should be truthful, honest. पर Am I ब्यूरोक्रेसी में correct? इतना उलझ जाता मामला कि वहाँ का वहाँ रहता है। Who are the पॉलिटिकल public sector डिसीजन banks? होने के बाद भी राजनीतिक एक They are also डिसीजन लेने के बाद run भी by the वो वहाँ government, का वहाँ पड़ा हुआ है, and they are also इसका पैसा considered नहीं है, आप as कोर्ट में state गए, under किसी the ने constitution for all the किसी purposes. अभी बड़ी मुश्किल से पिछले वेतन समझौता These public sector banks 2023 and में our उसमें कुछ थोड़ा सा अमाउंट दिया है, that is serving 2,000 रुपए जो they भी have compared अपर्याप्त है, अपर्याप्त। लगभग कितने that settlement says that is stated going to March 2024. 7 लाख हमारे स्टेट बैंक को मिला के 7 लाख पेंशनर है बैंकिंग इंडस्ट्री में से, उसमें से 80% प्रभावित है, 80% का अपडेशन होना चाहिए। पुराने वालों का ज्यादा होना चाहिए, नए वाले का 2-4 साल बाद उसकी हालत में आ जाएंगे। यदि ये पेंशन अपडेशन का फार्मूला नहीं लगाया, जो वेलफेयर के लिए लाया है, आज 100 रुपए 500 रुपए पेंशन में क्या वेलफेयर हो सकता है? आज के आंदोलन के बाद अगर सरकार ने ध्यान नहीं लिया तो हमारा आंदोलन चलेगा। हमारा अगला कदम है कि हम एमपी से मिलेंगे, पहले भी मिल चुके मेंबर ऑफ जनवरी हुआ तो राजघाट में हमारा वो एक कंटिन्यूस रिले हंगर स्ट्राइक पे भी हम बैठने वाले हैं। हमारी बहुत सी उपलब्धि आई है जब हमको हमारा ये ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन और यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ की तरफ से है। ये धरना कार्यक्रम हमारी जायज एक मांग है कि इसमें तो आज अपडेशन ऑफ पेंशन जो 30 साल से पेंडिंग है वो इशू अभी तक इंडियन बैंक एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें अभी तक उसके सैंक्शन नहीं मिला है। उसके लिए हमारा ये धरना प्रोग्राम चल रहा है। देश भर में आज तक कम से कम 10 धरना प्रोग्राम हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, और ये हमारी जायज मांग है कि सरकारी वेतन कर्मचारियों की वेतन जो है चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उनकी सबकी बढ़ोतरी होती है पेंशन की, लेकिन आज बैंक कर्मचारियों की वेतन जानबूझ के रुकाई गई है, प्रलंबित की गई है, ऐसा हमारा ये कहना है। उसके बाद में हमको डायलॉग करने की हमको सहमति नहीं है। घटना की ओर से हमें परमिशन है, घटनात्मक आप बोलेंगे तो आज हमारी इतनी बड़ी संगठन है तो भी हमें आज वो बोलने के लिए इजाज़त नहीं देते हैं। हमको चर्चा करने के लिए टेबल पे बुलाने के लिए हमें हमारी ये भी एक बड़ी मांग है। जीएसटी का भी इशू है हमारा, जो मेडिक्लेम के ऊपर जीएसटी आज लगाया जा रहा है 18%, वो भी कम होना चाहिए, ऐसी एक मांग है। ये हमारी प्रमुख मांग है कि इसके बारे में अपडेशन ये हमारी मदर माइंड। सर आज के धरना प्रदर्शन के बाद इस लड़ाई को लेकर सर कहाँ तक जाएंगे आप? देखो आज हम लोग इंडियन बैंक एसोसिएशन में जा रहे हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन में हम लोग आज चेयरमैन को मेमोरेंडम देंगे, और अगर ये मांग उनकी नहीं सुनते हैं तो हमें आगे की लड़ाई पड़ेगी। उसके लिए हमारी 21 तारीख को फरवरी को हैदराबाद में सेंट्रल कमेटी मीटिंग हो रही है, उसमें हम लोग आगे का प्रोग्राम हम डिक्लेयर करेंगे। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहेंगे आज का जो धरना प्रदर्शन है, आप बैंक एम्प्लॉइज हैं, आपकी किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारा पेंशन रेगुलेशन 1993 में 95 से लागू आज तक हमें अपडेशन नहीं मिला। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का State Bank of India स्टेट and गवर्नमेंट give some हर 5 साल information. हर 10 We साल are all fighting for 3,000, हमारे पास 4,000, ये होता नहीं 5,000 है। पहली rupees बार increase in हर pension 5 साल updation. में एग्रीमेंट होता है
और कोई अलग तरीके का होता है, हर 5 साल का एक अलग अलग लैंड बन रहा है। हमारी मांग इतनी है, वो तो तफावत रह गई 2-2.5% की हर बाइपार्ट उसको वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर समझो कि कोई टेररिस्ट होगा ऐसा या कोई दूसरा आदमी उसको पूछी जाती है कि तेरी रजा क्या। 28 साल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हमारा बिहेवियर है 2,75,000 का है, लेकिन कभी हमको बुलाया नहीं कि आप तो क्या डिमांड है। हमारा जो इंश्योरेंस है गवर्नमेंट ने किया है, इंश्योरेंस दे दो। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का किस्त बैंक भरती है और हम हमारा किस्त भरते हैं, उसके बावजूद हमको कहीं बुलाने जाते कि कौन सा वाला चाहिए, क्या किस्त होगा, क्या उसके कंडीशन, हमारे साथ कुछ बात नहीं करते। तो इसी यही डिमांड से और हर साल हर 5 साल में जब भी बाइपार्ट होता है अलग अलग आइलैंड होता है, जो 5वें वेतन के अंदर जो हमारा जो बाइपार्ट में था और 13वें में जनरल मैनेजर से ज्यादा क्लार्क का यही हमने निकाला चुका है। और ये हमको जो मिल रहा है ये हमारे पैसे, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हमने बैंक को दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट दे रहा है। For implementation, in case if हमारा Supreme Court judgment is not implemented, उसके बदले में then और कुछ or if it is not partially implemented, approach an High Court, and if a legal route is taken, that decision should be given within a short period of time. We filed this petition in Delhi High Court. अगर हम पॉलिटिक्स में Delhi जुड़ High Court has जाएंगे, अगर हम ordered जुड़ us जाएंगे, to अगर submit सीनियर रिजर्व फोरम के representation साथ to जिसकी each of the तादाद public 13 sector करोड़ bank. तो ये To वो each of the बैंक बन public सकता sector है। bank. And गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, इसलिए हम इसको डालते हैं कि Bank हम कोई should शिकायत नहीं reply देंगे पार्टी या वो पार्टी, with हम speaking जायज order मांगे मांग रहे within हैं। 6 अगर weeks. नहीं देंगे तो एक बार वो भी 18 नौबत आ was the जाएगी last कि date for हम State Bank of India, Citizens and by Bank this बना month करके end, हमारा time would be कैंडिडेट 6 weeks time would be over ने बुलाया। by end of this year. थैंक यू वेरी मच, इससे ज़्यादा If they don't